Assalamualaikum everybody and welcome back to another vlog. Well, today in this vlog I'm going to Al-Tith Fort, so let's go. We have already reached here. The path was quite beautiful and I don't know what to say, everything is beautiful over here. So the thing over here is that there are so many flowers and there are so many plants of different kinds on your way. You see, right now we have parked our car in the Al-Tith Fort parking. Let me show you. You see the mountains? It's so beautiful. That's it. Now we are getting together to go. It is said that Al-Tith Fort is over there. I can't see it right now. That is on the top of the mountain. That's it. Let's go. So this is the way. We have to walk through this to get to Al-Tith Fort. You know what? Let me be honest. I come to these places often. Not very often, but often. So what happens? It's my wish to come here, to live here for some time, talk to the locals, get involved into their culture. That's it. That's what I want to do. We visit here only to the top places, only to the major places which are quite important ones, but not inside, like what's inside the lives of these people. Look at the view of the places. This is the tree of pears. That's my sister. There are so many shops here as well, of photography, of jewelry. That is Al-Tith Fort. That is the timing. That is entrance. It is 400 years old museum. There is also library, Hanzo Quds. Let's go. That's the entrance. You have to give 600 as the entry ticket. So this is where you have to take entry ticket from, and that's the entrance over there. So we've got our ticket and it's time to go. There are so many trees with khubaniya and so many fruits. You know, I love such places where there are so many fruits on the trees. Oh my god, look at the beauty. It's so beautiful here. I don't know what they've put on the floor. Let's read out the ticket. Locals also live here. They've got their houses and some of them are also part of the staff who take care of the museum and fort. So beautiful. It's so beautiful. That's it. Entering. So Serena Al-Tith Fort residence is over there. It's actually hiking. We are moving on, climbing a mountain right now.
मुझे आपके साथ ये जाएंगे, आपको और विजिट करवाएंगे सारा। यार शेर मोबाइल है ये हैं गाइड आपके आपसे। मैं वो नीचे उनको बुला फिरा लूँ ना फैमिली से। गाइस हमारे गाइड चेंज हो चुके हैं और अब वो अल्तीफ के अपने गाइड है, वो हमें बताएंगे इसके बारे में सारा कुछ कि एक्चुअली में है क्या चीज़। अच्छा खोलो गुत्ते हिदायत। सो आप सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बोट के विजिट के लिए आए हैं। आप विद इन 10 मिनट्स जितने लोग जमा होंगे आपको साथ गाइड लेके जाएंगे। ओके सो कल भी हमारा एक सेशन था अल्तिफ फोर्ट के ऑफिशियल्स के लिए कि हमारे टूरिस्ट जो दूर से आते हैं यहाँ यू कैम हियर फॉर एक्सकर्शन, यहाँ आप खुशी के लिए आए हैं। हमारे चौके तकरीबन 4-5 एपिक सेंटर्स ऑफ अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले बहुत आते हैं। 13 दिन पहले 28 घंटों में 2 ज़लज़ले आए हैं। सो खैर होंगे तो आपके साथ गाइड ड्यूरिंग द टूर। अगर ज़लज़ला आता है तो आप लोगों ने गाइड का सुनना है, अपनी मर्जी से इधर उधर भागने की कभी गलती न करना। इस बिल्डिंग की जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है दैट इज़ 8.5 रेक्टर स्केल मिनिमम। यहाँ तक कोई ज़लज़ला नहीं आया है। इस मिलेनियम का पहला ज़लज़ला, बड़ा ज़लज़ला 2015-26 अक्टूबर 8.1 था वो भी। सो इसलिए रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आपको गाइड छत पे तस्वीरों के लिए छोड़ के वापस आ जाते हैं। आपके गाइड के गैर मौजूदगी में भी अगर आपको ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं तो आपने आराम से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना है, ये रॉक पे रुकना है। खैर ज़लज़ला होता भी 20 सेकंड 30 सेकंड्स के लिए या आधा मिनट के लिए होता है, इसमें आपने बुखलाहट का शिकार नहीं होना, अपने आप पर काबू पाना है। ये है। दूसरा उस तरफ एज है, एज से लीन नहीं करना है आपको, क्योंकि ये हमारा नेचर बग़ैर ज़लज़लों के भी ख़तरनाक है। जितना खूबसूरत है इतना ख़तरनाक है। हमें ये बताया गया है कि कैमरे में अगर कोई दिखाई दे आपको लीन करते या ऐसे कोई हरकत करते तो फिर यहाँ हमारा मैनेजमेंट पकड़ता है उनको, उनके काबू से भी बाहर हो जाते हैं, तो फिर कानून है। इसलिए आप बहुत एहतियात करें। अब वो तो खैर आप अपने माँ बाप के कीमती बच्चे हैं, आप सारे पढ़ रहे होंगे ना यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर। ये है आपने बहुत एहतियात करना है नेचर से। बाकी यहाँ लोगों से आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप मसलन हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, आप रात के 2 बजे भी बाहर घूमते रहें तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन नेचर से आपके लिए नेचर का, आपको इस नेचर का साउथ वालों को कुछ नहीं पता है कि कहाँ कदम रखना है, ये भी नहीं पता है आपको। इसलिए जब आपको हम गाइड्स ग्लेशियर्स पे लेके जाते हैं तो पहले हम आगे होते हैं ताकि हमें पता चला आप आगे होंगे। मसलन यहाँ क्रेविसेस होते हैं, उनमें एक एक पत्थर गिरते 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 उस पर मलबा जमा हो जाता है। जब आप इवन यू स्टेप देयर तो मलबा नीचे गिर जाता है, आप क्रेविस में जा सकते हैं। इसलिए यहाँ के नेचर के बारे में आप यकसर नावाकिफ़ हैं। गाइड अमूमन आप ले लें। बाहर का भी अगर आप टूर करते हैं तो ऐसी जगहों का जो ख़तरनाक हो, आप उस टूर के लिए भी गाइड लीजिएगा। खुंजरा पास जाना चाहते हैं तो वहाँ आप में से पूरे ग्रुप में से किसी एक के पास इनहेलर होना चाहिए। इनहेलर का फ़ायदा ये होगा कि आप में से किसका कितना जल्दी इम्यून ड्रॉप होता है नहीं पता है वहाँ, क्योंकि आप कराची से आए या लाहौर से, आपका लाहौर सी लेवल से 300 मीटर 990 फीट, खुंजरा पे कितना होगा 16,200 फीट। वहाँ यहाँ ऑक्सीजन आपके लाहौर में 19-20 फिक्स है, यहाँ 14%। इवन यहाँ भी आप सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ेंगे तो सांस चढ़ेगा आपको। खुंजरा पास पे तो वहाँ पे लोग भी बताएंगे आपको, साइन बोर्ड्स भी हैं कि दौड़ना, छलांगे लगाना, खेलना मना है, तो आपको मुश्किल ये नीचे कोस्टर में। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अंकल ने तो ट्राई किया है।
So uncle has scared a little bit. He said we need to be cautious from nature. We should not tease other animals and we should be enjoying that rather messing up with things. And on the other hand, he also said that earthquake comes as you have listened. So we need to be cautious and we need to move slowly in such cases rather getting panicked. That's it. So it's getting excited. Let's move on. Time to get started. और हमारे टूर गाइड हमारे साथ होंगे, उन्होंने जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो हम लोगों को बता दिए हैं। अभी वो हम लोगों को लेकर जा रहे हैं। मुझे अभी से सांस चढ़ने लग गया। 400 years old. I believe old things were much more stronger than this, than the new things. Altit Fort 1100 years old and Baltit 800, so is oldest. But बादशाह की था किंग हिजवन, समर में यहाँ और विंटर बल्तित। इल्ते बिल्ते दो नाम, ये बल्ती लैंग्वेज तिब्बतियन वर्ड, यानी इल्ते मीन्स डाउन एंड बिल्ते मीन्स अप। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते आल्टिट हो गया और बिल्ते बिगड़ते बिगड़ते बल्तित हुआ है, इसका मतलब अप एंड डाउन। इल्ते डाउन एंड बिल्ते अप। ये फोर्ट बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शाह खातून फ्रॉम बल्तिस्तान। उसके वालिद ने उसको जहेज में बना के दिया था, गिफ्ट में बना के दिया था ये फोर्ट। जो यहाँ का मीर था उसका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान। तो मीर मोहम्मद जमाल खान इज द किंग ऑफ हुंजा। मीर ऑफ हुंजा इज द लास्ट किंग। उसकी स्टेट 1974 में ख़त्म हुई है। जो बादशाहत थी वो 1974 में ख़त्म हुई है। बट किंग हिजवन समर में यहाँ और विंटर में बल्कि। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर किया है। 2006 लास्ट रिपेयर इन AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। इसको रिपेयर करने में ही 3 साल लगा है, यानी 6 से 9 तक ये रिपेयर हो गया था लास्ट। बाकी हिस्ट्री में आपको अंदर रूम बाय रूम एक्सप्लेन करता रहूँगा, बताऊँगा। सो डोर इज़ द शॉर्ट, वॉच योर हेड। सर का ख्याल रखिएगा, दरवाजे भी शॉर्ट है और बच्चों का भी ख्याल रखने हैं, ऊपर हाइट ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, प्लीज़ आ जाइए। इनको पहले जाने दो, फिर अपना वो This is the room. Stairs are really big. Oh man. So this is from inside. और भी छोटे छोटे दरवाजे हैं, ऊपर जाने तक छोटे दरवाजे हैं। My sister just got hit by this and I need to मेरी बात पे कोई अमल नहीं करता। आपका लगा तो नहीं है? पूरे मस्जिद नीचे रहना। अच्छा कितने फुट वाला? ये रानी के लिए था, रानी छोटी होगी। कहाँ से आते थे? कोयटा। कोयटा ग्रेड क्या है? रेडिएटर। Yes. These are the windows. That is how it is made from bricks, stones. That's it. ये है जी मेन एंट्रेंस, सिक्योरिटी गार्ड रूम है। यहाँ पे सिक्योरिटी होती थी, बाहर से आने वालों को ऊपर भी नजर रखना था। अंदर तहखाना जिंदान में आपको ऊपर से दिखाऊंगा। So basically this is the guard room, security guard room, and down there is the wine cellar. So before Islam used the wine,
in Hunza winter time minus temperature is cooling. So drinking wine and heat the bodies. बॉडी को गर्म रखने के लिए वो शराब पीते थे, यानी सर्दियों से बचने के लिए। और ये जो खड़ी पिलर है, ये खड़ी खबर है, दो भाई दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाहत मिलनी थी, छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, वो अंदर है। उस दौर में इस तरह के सजाएं देते थे, जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बर्फ की खाई में डालना। सो दैट टाइम का पनिशमेंट। डोर इज द शॉर्ट, 3 रीजन। दरवाजे छोटे रखने का भी रीजन है, क्योंकि एनिमीज हमलावर अटैक करते थे, एकदम स्पीड से इंटर ना करे। जैसे वो इंटर होंगे, सर झुका के अंदर उनका सर कलम किया जाए। और दूसरा रिस्पेक्ट, बादशाह के सामने सर झुका के अंदर इंटर होना है। वैसे तो यहाँ पे घर के दरवाजे विंडो भी छोटे रखते हैं। इन विंटर्स माइनस टेम्परेचर 5 to 10 उससे ज़्यादा भी होता है। और दिसंबर जनवरी में बर्फबारी होती है। दरवाजे विंडो छोटे रखने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है। इसलिए हम छत को थोड़ा सा डाउन रखेंगे और ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। इस मिट्टी की खासियत सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा है। ये था सिक्योरिटी गार्ड रूम। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे की तरफ। सो एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, फिर नेक्स्ट। यस, वाइन सेलर में शराब की स्टोरेज। इसमें रखते थे शराब, ग्रेप वाटर। यस, लेकिन अभी खत्म हुआ है। बादशाह का क्या नाम था? जी, यहाँ से अपने भाई को जिंदा अंदर रख दिया। This thing is very dangerous and it's very scary because this is the proof that a brother put his brother inside it and he died and still his bones are inside. The history is quite interesting. जल्दी और जगह शुरू करना है। कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग जिरगा, जो गांव के मसाइल यहीं पे डिस्कस करते थे, साथ में खाना बनता था। ये खाना बनाने वाली बर्तन। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, पत्थरों को तराश के इस तरह के बर्तन बना के ही बर्तनों में खाना पकाया करते थे। इसको हम कहते हैं बलोच। सो बिग वन इज द बलोच एंड स्मॉल वन इज द कुरकुन इन हुंजा लैंग्वेज। सो बेसिकली इन हुंजा 3 लैंग्वेजेस, लोअर हुंजा शना, सेंटर ब्रुशस की, अपर हुंजा वक्की, और टोटली डिफरेंट, बिल्कुल मिलते नहीं है। ये स्टोरेज बॉक्स है जिसमें गंदम मकाई स्टोरेज करते थे। एंड द कॉर्नर इज द कोल्ड स्टोरेज, फल फ्रूट सब्जियां इसके अंदर रखते थे। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है 7.8 ज़िलज़िले को, अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने ज़िलज़िले आए होंगे अभी तक ये 40 का हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 उससे ज़्यादा भी आते हैं, क्योंकि इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान 3 माउंटेन रेंजेस यानी 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं यहाँ पे। कौन कौन से मिलते हैं आप बताइए? गुड हो गया जी। K2 इज द नोटर रेंज, पीक। यस, वो पीक है जी। गुड मैम, आपने सही बताया। ये पट्टी कौन सी है? ये पट्टी कौन सी है? काराकोरम। हिमालय कहाँ आता है? नॉर्थ वाली साइड। नेपाल वाली साइड पे। डन हो गया। चलो, पाकिस्तान में कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट कर दूं? ये जो आता है ना आपका जंक्शन आती है ना, वहाँ से। इसका हिंदू कश बताएं जी। जी, गुड हो गया, बता दिया भाई ने। अफगानिस्तान वाली साइड सही बताया। सो ये चित्राल के पीके अफगानिस्तान साइड पे ये हिंदू कश में आता है। ओके, और ये जो पिलर्स की कार्विंग है ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म, तिब्बतियन कल्चर। ये कल्चर आया वहीं से। इसको कहते हैं दलाई लामा। सो दलाई लामा इन दलाई लामा कहाँ होता है? इन तिब्बत। यस, इन बुद्धिज्म, तिब्बत बुद्धिज्म में होता है, चाइना में भी है, तिब्बत में। सही कहा, जो कि बुद्धिज्म में होता है। और ये पत्थर जिसको हुंदुशुतिन, वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, किस्म का देवता मानते थे। इसको शिवलिंग भी कहते हैं, शिवा, जो कि शिवा होता है कहाँ पे?
इंडिया इंडिया में नहीं होता है, चाइना में भी नहीं होता है, बुद्धिज्म में भी नहीं होता है, हिंदुइज्म में होता है। यस, इंडिया में हिंदू इंडिया में देखो, इंडिया में भारत हिंदू में इंडिया में इंडिया का कोई वो नहीं है, ये हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में। इंडिया में मुस्लिम भी है, अब मुस्लिम तो इस्तेमाल नहीं करते ना, हिंदुइज्म में होता है, हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में होता है। और ये एक साइन दिखाता हूँ मैं आपको, ये साइन, ये गोल साइड, राउंड एंड क्रॉस, 1 2 3 4 एलिमेंट, ये देख रहे हैं साइन, एक खास साइन है। इस साइन को हम क्या कहेंगे? स्वास्तिका। सो व्हाट मीन स्वास्तिका क्या है? एक तो जर्मनी वाला है वो, जी मैं जितना था उसके फ्लैग पे था क्रॉस। मगर बुद्धिज्म के लिए पीस का होता है ना? नहीं नहीं, हिंदुइज्म में भी है, हिंदुइज्म में है। वो peace इसके अंदर जो 4 एलिमेंट्स है वो क्या है? 1 2 3 4 वाटर, अर्थ, एयर, फायर। आग, पानी, मिट्टी, हवा, चारों मिलके बनता है शक्ति। सो शक्ति मीन्स लाइफ। पावर, 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 शो द पावर। ये पावर का साइन है, पावर इसलिए हिटलर ने दिया था क्रॉस। यस, यानी यहाँ पे भी इस रीजन में भी पहले यहाँ पे शमनिज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म रहा है। आज से 400 साल पहले इस्लाम आया, और पहला इस्लाम ईरान, ईरान टू सेंट्रल एशिया, फिर वहाँ से यहाँ आया। जो यहाँ की डायनेस्टी है ना, जो हुंजा की डायनेस्टी है, वो हंस है। सो हन डायनेस्टी, हंस डायनेस्टी, हान इन चाइना, चाइना। इसका कदीम नाम भी हुंजो है, हुंजो, गुआंजो, वांजो। इसी तरह ये हुंजो था। 1891 में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हुंजो को हटा के हुंजा किया है। वी आर आल्सो सेंट्रल एशिया। जो हमारे फोरफादर, उनके परदादे, वो ज़्यादातर सेंट्रल एशिया, चाइना, वाखान, बदख्शान, ताजिकिस्तान, वहाँ से आके यहाँ आबाद हुए हैं। कदीम ज़माने में उस दौर में लाइट नहीं था, नो इलेक्ट्रिक लाइट, यानी दिन की रोशनी के लिए विंडो ऊपर और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर खाने बने हैं। इसमें दिए चिराग चलते थे, कैंडल लाइट। नीचे जो कालीन बिछाई है, हमारे यहाँ एक जानवर याक है, याक पे देखा होगा, उसके बाल से बनते हैं। तो घर में भी हम लोग इस तरह के कालीन बिछाए। जी, दरवाजे से बिल्कुल आगे पीछे आना होगा, क्योंकि पीछे जो आ रहा है ना वो फंस ना जाए। इनोसेंट डार्क ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा होता था। जो हमलावर, जो एनिमीज होते थे, उनका हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। प्रिजनर, काल कोठरी, जिंदान, तहखाना, इसको हम तहखाना भी कह सकते हैं। तो यहाँ उनकी पनिशमेंट होती थी। अगर आप जाना चाहते हैं तो वापसी में आप विजिट कर सकते हैं। अभी पहले ऊपर का पोर्शन का विजिट करो, वापसी में आराम से नीचे डेंजर में जाएंगे, यानी जेल में जाएंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो कैदी नंबर 804 पक्का है। ठीक है, चले अभी राइट साइड पे चलते हैं, आगे से राइट साइड। जी अभी कोई कैदी नहीं है जी, एक ही कैदी है, मैं ही हूँ। फिलहाल मैं आपके सामने इधर खड़ा हूँ। चलो जी, चलो। The doors here are very short. सर बचाते हैं। इधर जी, इधर बाहर नहीं जाना है फिलहाल, इधर उसका जरा ख्याल रखें, वो बच्चे के साथ यही में। ये है जी किंग एंड क्वीन बेडरूम, राजा और रानी का बेडरूम है। क्योंकि इस फोर्ट में ओनली किंग फैमिली समर टाइम हियर एंड विंटर टाइम बल्कि, यानी बल्कि पे रहते थे, सर्दियों में, गर्मियों में यहाँ। वो उनका बैठ का जगह, सोने की जगह। ये प्रॉपर बिस्तर लगता है, इसे नहीं था, शाही बिस्तर लगता था। ये बैठने की जगह है, और ये फायर प्लेस चूल्हा है। यहाँ पे ड्राई स्टोरेज, ड्राई फ्रूट का स्टोरेज था। ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, छोटे बेबीज को। दीवार का अंदर जो 3 लकड़ी का कील है ना, 1 2 3, ये उस दौर का हैंगिंग नहीं है, ये एक्सरसाइज भी नहीं है। नो हैंगिंग, नो एक्सरसाइज, फिर क्या है आप बताओ? नो मशाल, नॉट फॉर हैंगिंग, नॉट फॉर हैंगिंग। यस, गुड हो गया। नाम पकड़ जाते यार। ओके, सो इतना भी ईमानदारी नहीं करेंगे, नाम का सवाल है। ओके, सो ये घड़ी है जी, सही बताया है भाई, ये घड़ी है, क्लॉक है। वो विंडो, वहां से सूरज की रोशनी इसके ऊपर, जैसी सूरज मगरिब की तरफ, इसकी जो शेडो है, साया है, वो घड़ी की सुई की तरफ घूम जाती है। वो अपना साया बदलता है, दिशा बदलता है। सो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम, नो मिनट्स नो सेकंड्स ओनली आवर्स, घंटे के हिसाब से दिन का टाइम देखते थे। इसको कहते हैं सन डायल। ये सन डायल है,
अभी पता चल सकता है इससे? इससे हाँ, इसके हिसाब से मैं आपको टाइम बताऊंगा। इसके हिसाब से मैं आपको टाइम बता देता हूँ। मैं 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता हूँ, क्योंकि इसमें मिनट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। अभी 10:20 हो गया होगा। 34 अच्छा, अभी आपको कैसे पता चला ये बताएं? ये है ना, देखो ये shadow है। ये रिफ्लेक्शन से मैं इससे देखता हूँ, मैं ऊपर वाला शेडो जो है ना, नहीं से नंबर कैसे पता चला? ये आइडिया है, रूटीन इसकी रूटीन से देखना होता है, घड़ी की रूटीन से नहीं। हमें आइडिया है, हम इसकी शेडो से देखते हैं, बताते हैं आपको। ये टेढ़े का एंगल 10 का है, ये जब सीधा पे आएगा ना, ये 12 पे ही आएगा। तो ये हो, अभी इसको चला के भी दिखा सकते। Oi. So this is terrace. It's so high. We can see the entire. नीचे हट्स बने होटल कैसे बड़ा यहाँ से वो देखते होने कौन आ रहा कौन नहीं, है ना? जब लास्ट टाइम याद वो नहीं, ये नहीं था। हाँ वो बलती तो नहीं ना, ये अलतीत है। है ना, ये नहीं है वो। गार्डन था नीचे साइड बोलती थी वो था लेडी का बनाया था नमाज पढ़ने के लिए। और नीचे गांव 1000 साल पुरानी आबादी आलती, यहाँ के गांव के लोग रहते हैं। नीचे सर्दियों में, गर्मियों में ऊपर रहते हैं, डबल स्टोरी से। ये सामने पीक उत्तर लेडी फिंगर, नुकीला पहाड़ निकला है ना, नुकीला छुरी की नोक की तरह, वो लेडी फिंगर है। सेकंड रकापोशी वो रहा, सबसे हाईएस्ट पीक हुंजान नगर वाली में रकापोशी। थर्ड में दीरान है, ये दीरान पीक दरिया के उस पार नगर उस पार हुंजा। और ये ऊपर व्हाइट वाला बल्टिक फोर्ट है, जो कि 800 साल पुराना है। आल्टिक फोर्ट 1100 साल पुराना किला है। इसके अलावा ये टॉप में आप देखिएगा छोटी रकापोशी। It is Baltit Fort. वो है ईगनस इज द हाईएस्ट व्यू पॉइंट। आप जाए से 7 के बीच में सनसेट के That is Lady यहाँ से Finger. 20 से 25 मिनट लगेगा। आप जाके वहाँ जितने पीक्स ग्लेशियर से वहाँ से आपको नजर आएगा। ओल्डेस्ट नेम इज दुईकर, न्यू नेम इज ईगनस। इसके 2 पोर्शन और दिखा होगा, 2 मोर पोर्शन। उसके बाद आप आजाद है आराम से। This is Rakaposhi. तो ना स्पून नहीं है, पता नहीं कहाँ का। Let's go higher. याद तो तुम छोड़ो, मुझे लगा मामा किधर है? तो मम्मी किधर रहती है? Where's mom? मामा आ गए शायद। मामा आ गई नहीं, मामा ही नहीं है। ये क्या है? That's one more portion. कोई बात नहीं। ओके, आज जगह है जो हमलावर, जो एनिमीज, उनको यहाँ से नीचे फेंक देते हैं 1000 फीट नीचे। फिर उनका बचना ये सबसे हाईएस्ट एंड डाउन दिस रिवर हुंजा, जो कि रिवर हुंजा होगा, काराकोरम हाईवे, सी पैक, कोलकाताबाद लेक, गुजरात का आप इनटू चाइना, जो वही रोड है जो सीधा चाइना को निकलता है। ये सी पैक, इसकी हाइट रिवर से 1000, जबकि सी लेवल 8500 फीट यहाँ तक है। सो अभी Right now we are heading towards the new renovated part of this fort. ये 1891 जब अंग्रेज आए ना, उनके पास तोड़ना थे, उन्होंने ये पोर्शन उधर ज़्यादा दूर नहीं जानते। क्योंकि ये खानका भी था यहाँ, वजू करके हाथ मुंह धो के नमाज भी पढ़ते थे वो। ओके जी, सो द न्यू पोर्शन 1891, सो 1891 ब्रिटिश कैम हियर इन हुंजा। उस दौर में ये बनाया था, थोड़ा सा मॉडर्न
गेस्ट रूम्स अंग्रेज़ों के लिए। और ये खानका मिनिस्ट्री इबादतगाह जब इस्लाम आया तब बना है। नीचे गांव 1000 साल पुरानी आबादी अल्तित, इस गांव का नाम अल्तित है, उस गांव का नाम बल्तित है। यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं, सर्दियों में नीचे बेसमेंट से, गर्मी में ऊपर रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने तकरीबन हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। आप ये कमरे देख गाइस, यहाँ पर ये इनका रूम है। यहाँ पर ये लोग गेस्ट रूम्स है। जब ब्रिटिश आए थे ना तो अंग्रेज़ों के लिए लोगों ने ये रूम बनाए थे। एंड लुक एट ऑल द पिक्चर्स हियर। शो So these are Altit people. This society is 1000 years old. Over there, which I showed you earlier, that was Baltit Fort, and near that, now we are heading back. यहाँ से ही आए हैं, यही है। वो है भाई, वो है इधर आओ। तुझे मैं संगली डाल दे, फिर चलेंगे। नहीं, ये वो है जो है। हाँ वेट, आजा। This is beautiful, but this is very small, especially for us people. Now we are heading back. It was so much fun. When you look at the history and reflect the things, you feel like you are in the same era. So that was an awesome experience. There are cameras as well, which are colored in such a way that nobody will know that there are also some cameras. Right now I'm very hungry and I'm planning to eat this burger, so I'm standing in front of it. The person is preparing it. On our way back home, but the fact is when you come from northern areas to these areas, it becomes very hot. Right now it's very hot over here and I'm sweating. This feeling is not very good. I was very hungry. Actually I did not had full breakfast in the morning as well, so I got hungry more earlier. Therefore right now my mother and my sister are getting a burger for me, and that's it. We are here at the same area last time where we made videos and pictures. This is actually the area where a lot of people come for the food. It's a kind of a cafe. Yeah. So after this, there is no other cafe or store where you can buy anything. That's it. See? So I have ordered lassi and it's so yummy.
towards Naran right now. Sorry, Naran Bazaar. We are in Naran already. Back there I was in Karimabad Bazaar. Karimabad Bazaar isn't very crowdy. On the other hand, Naran is very crowded. Today I was seeing there were so many people and the entire Naran is packed today. So let's go. I need to be cautious. There is water because glaciers are melting. We are on the road as well, as I need to see behind me because the car is coming. Right now a truck is coming. Do you see? Here is the water from where it is coming from. I'm afraid they don't have light. How will they go home? So you can see the lights. That is Mall Road. So we are almost there. There is another glacier melting here. You can hear voice of sounds of the water. I need to be cautious because I don't want to get wet. I am so happy. It's so nice walking in the night. You know, I rarely walk after 12 o'clock at night, but when you are outside, you should, because it's fun. Lights seem so much fun over there. Look at that! And we are also almost there. We are almost there. Shops have started from here. You see? So you see there are a lot of ancient and handmade things over here. This is quite very popular. They make them with their own hands and then sell them, and they literally look so beautiful on you. Next shop is of dry fruit. Dry fruit is actually Sogat of this area. So if you come here and you don't buy this, how is that even possible? So majority of the people buy it here, and many of the shops you will see are all dry fruits. Let's get it.
So we have taken Son Halwa and now we are moving further to see some other shops. एक सेकंड, कितना प्यारा है। इसको बोलता है ये इसको कहीं बोले। देखो ये चल रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा? चूं चूं करता है। ओए हेलो। सारा लाएगा मैं आपको अच्छा। ये कितने का है? As you see, I am totally ready right now and we are about to check out. ready, guys. And today we are about to check out and today we will go back home. And they are saying that it will take the entire day. Now we are on our way back home. I hope you enjoyed our vlogs and you loved them. So like, subscribe and share. Let's see you guys in the next video. Bye bye.